Assalamu alaikum class 2. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home and taking good care of yourself. So tell me class 2, what's the date today? It's 23rd of December 2020. Day is Wednesday. And what's the name of the chapter? It's unit number 8 about materials. You must be thinking, teacher, we are done with that unit. Yes, you are right, we are done with that unit. But remember, we also have a workbook. So once we are done with the reading book and we have learned all the concepts from the reading book, now is the time that we have to do the workbook pages. So you all have to open your workbook, page number 20. And while you are opening that, let us all revise the previous concept about the chapter that we have started. It was about forces. But because we are going to do our material workbook work, so why don't we revise about the materials first and then we will talk about the second unit, okay? So in materials you have discussed about the different types of material. हमने सीखा हमारे पास कुछ man made materials हैं, कुछ natural materials हैं, then we have some waterproof material, non waterproof material, then we talked about some of the materials that can sink and some of them that can float. सो ये सब चीज़ें हमने मटेरियल के चैप्टर में पढ़ी और उसके अलावा हमने ये भी बात की कि कौन से मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है. सो वी हैव आल्सो डिस्कस्ड लाइक विच मटेरियल कैन बी गुड इन यूज़ फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, राइट. So this was about the revision of the topic material. Now coming back to your workbook, if I can show you the page in a while. Yes, I hope now it's very clear to all of you to look at the book, and we are going to do the activity of material. So coming to page number 20, here is page number 20. What you are supposed to do, you have to read it and then you have to decide from this box that which type of material you are going to use for these things. So let me just read the statement. You have to read it with me. Can you suggest some suitable materials to super scientists? Each thing that he wants to make. Remember, there can be more than one for each. Don't forget to draw the pictures. Okay? So what he is saying to you, here we have a column as you are able to see this red box. इसमें हमारे पास बहुत सारे words हैं. Let us all count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have 12 words given there and we have 10 statements. See, we have 10 statements. So he said like we can use more than one word. कोई भी ऐसी यहाँ पे चीज़ होगी जिसको हम एक से ज़्यादा मटेरियल से भी यूज़ कर सकते हैं, बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1 है, हु इज़ गोइंग टू रीड द नंबर 1 स्टेटमेंट? मोहिब, विल यू प्लीज ट्राई टू रीड द स्टेटमेंट? वेरी गुड. इट्स नंबर 1, अ बुक कैन बी मेड फ्रॉम. बुक किससे बनी होती है भाई? पेपर. एंड आंसर इज रिटन ऑन नंबर 1. A book can be made from paper, and we get paper from wood, and wood we get from trees, and tree is a natural or man-made material? Natural material. Good. Number 2 देखें. Aima, you have to read number 2. A wall can be made from. wall जो होती है आपके घर में, दीवार जो है वो किससे बनी होती है? Very good. It is made of bricks. So you are going to write bricks here. Number 3, a toy can be made from. जो आपके पास टॉयज होते हैं घर में खेलने के लिए, वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक. ओके, जो हम लिखते जा रहे हैं उसके ऊपर आप मार्क कर दें सो दैट वी गेट टू नो कि वी हैव यूज दीज ऑल वर्ड्स. सो आई एम राइटिंग प्लास्टिक. बट कुछ टॉयज ऐसे होते हैं दैट कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम
जो कि मेटल के भी होते हैं, जो कि वुड के भी होते हैं. तो वी आर नॉट राइटिंग एनी अदर थिंग. हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर जो लेफ्ट ओवर वर्ड्स होंगे उनको हम एडजस्ट करेंगे. राइट. नंबर 4 देखें. अ बेड कैन बी मेड फ्रॉम. आपके घर में जो बेड होता है ना, सबके घर में बेड, वो किससे बना होता है? इज इट मेड ऑफ पेपर? अगर तो पेपर का बना होगा तो फिर तो आप उस पर बैठ ही नहीं सकते, फ़ौरन से टूट जाएगा. ब्रिक्स? नो, इट विल बी वेरी हार्ड, बहुत सख्त हो जाएगा. सीमेंट? नो. वुड? येस, अ बेड कैन बी मेड फ्रॉम वुड. लकड़ी से बना होता है. ठीक है. आपने वैसे अपने घर का बेड देखना है, कुछ लोगों के मेटल से भी बने होते हैं, आयरन और स्टील के बेड्स भी होते हैं. नंबर 5 देखें. सन ग्लासेस कैन बी मेड फ्रॉम. जो आप सन ग्लासेस यूज़ करते हैं, दे आर मेड फ्रॉम ग्लास. ग्लास. अच्छा, ये इसमें प्लास्टिक भी आ सकता है, बिकॉज कुछ सन ग्लासेस प्लास्टिक के भी बने होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं. एंड सम आर मेड ऑफ ग्लास, जो उसके ऊपर लेंस लगा होता है, दैट इज़ मेड ऑफ ग्लास. ओके. अ कार कैन बी मेड फ्रॉम. कार किससे बनी होती है? इट इज़ मेड ऑफ मेटल. मेटल से बनी होती है. मेटल कैन बी सिल्वर, कैन बी आयरन, कैन बी गोल्ड. अब गोल्ड की कार्स तो नहीं होती, बट कार इज़ मेड ऑफ मेटल. मेटल में हम स्टील और आयरन को कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. अ स्नोमैन कैन बी मेड फ्रॉम. स्नोमैन देखा हुआ है सबने? येस, इट इज़ मेड ऑफ स्नो. वेरी गुड, क्लास 2. ओके. नंबर 8 है. अ स्पेसशिप कैन बी मेड फ्रॉम. स्पेसशिप जो होती है वो किससे बनी होती है? इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ मेटल. मेटल से बनी होती है. जो स्पेस पे जो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं रिसर्च के लिए, वो स्पेसशिप यूज़ करते हैं और वो मेटल से बनी होती है. राइट. नंबर 9 देखें. एन आइस लॉली कैन बी मेड फ्रॉम. आइस लॉली किससे बनी होती है भाई? खाई हुई है सबने आइस लॉली? इट कैन बी मेड ऑफ जूस. वेरी गुड. जूस से बनी होती है एंड यू एंजॉय वाइल ईटिंग इट. और है पजामाज कैन बी मेड फ्रॉम. जो आप पजामाज यूज़ करते हो घर में, हम जो कपड़े पहनते हैं, दैट आर मेड फ्रॉम क्लोथ्स. वेरी गुड. नाउ वी हैव टू सी हाउ मेनी वर्ड्स आर लेफ्ट. वाटर, स्टोन, सीमेंट, glass. We are done. 3 words are left and we have to adjust them. Ice lolly can be made of water. वाटर और जूस को मिक्स करके बनाया जा सकता है. तो यहाँ पे हमने वाटर को यूज़ कर लिया. देन वी हैव स्टोन. हमने स्टोन को यूज़ करना है. अ वॉल कैन बी मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. ठीक है. नाउ व्हाट लेफ्ट? सीमेंट. अब हमारे सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द वर्क. अब आपकी चॉइस है. आपने यहाँ पर इन जो पिक्चर्स हैं उन सॉरी जो स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनकी ड्राइंग करनी है. नंबर 1 है अ बुक कैन बी मेड फ्रॉम पेपर. आप इस पर छोटी सी बुक बना दोगे ऐसे. यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो इट टू यू कि आपने यहाँ पर कोई बुक बना देनी है. ठीक है. इसी तरह आप यहाँ पे कोई वॉल बना देंगे. इट विल बी लाइक दिस. और इसमें ब्लॉक्स होंगे. ब्लॉक्स विल बी ब्रिक्स एंड दिस लाइन इज़ ऑफ सीमेंट. देन अगेन वी हैव ब्रिक्स. So this is how you are supposed to do your work. With every statement you have to draw the diagrams and you have to label it. Like you will write book, wall. So I'm not going to draw all of these things. You have to do by yourself. You can draw any of your favorite toy. Then you can draw the bed, then sunglasses, car, snowman, spaceship, ice lolly and pajamas. So it's very easy task. You have to do it by yourself. Coming to the next page, that is page number 21. What's written on that page? Who is going to read the topic loudly? It's natural and man-made. So आप मुझे पहले बताएंगे कि what are natural material? We have learned about them. जी आमना, आप बताएं अपनी क्लास को what are natural materials? Very good. Natural materials are those that are made by Allah Almighty and they are present naturally in the environment. हमने खुद नहीं बनाए होते, वो अल्लाह ताला ने naturally बनाए. जैसे कि mountains, जैसे कि water, air, soil, sand, plants.
These all are the natural things. और इन सब चीज़ों से जो हमें मटेरियल मिलता है दैट इज़ अ नेचुरल मटेरियल, राइट. मैन मेड क्या है? Yes, Hur, you have to tell your class fellows what are man-made materials. Very good, Hur. Man-made materials are those that are made by man. For example, plastic, nylon, rubber. These all are the examples of the man-made materials that are made by man. All right. Now, what we have to do in this case, यू मस्ट हैव कलर्स इन योर हैंड. आपके पास कलर्स होने चाहिए. कौन कौन से कलर्स होने चाहिए आपके पास? लेट मी जस्ट टेल यू. यू मस्ट हैव अ रेड कलर एंड अ ग्रीन कलर. ओके, what you are supposed to do, circle the objects made from man-made materials with a red pencil and those with natural material with a green one. आपके पास रेड और ग्रीन कलर की पेंसिल है. आपने क्या करना है, रेड पेंसिल के साथ आपने मैन मेड मटेरियल्स को सर्कल करना है और अपने ग्रीन पेंसिल के साथ नेचुरल मटेरियल्स को सर्कल करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स अ कॉटन शर्ट. एंड कॉटन शर्ट इज़ मेड ऑफ कॉटन. कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. सो अच्छा, हम यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसको बनाया किसने है, ठीक है. हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्ले पॉट बनाते हैं, उसको बनाने के लिए मटेरियल क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, क्ले चाहिए होती है, सैंड चाहिए होती है. तो वो मटेरियल्स कहाँ से हैं? अगर तो वो नेचुरल मटेरियल हैं तो वी कॉल दैम नेचुरल. और अगर वो किसी इंसान ने बनाए हैं, जैसे कि अगर प्लास्टिक होगा, रबर होगा, तो you will say they are man-made. So you, while looking at these objects, you have to keep one thing in your mind. We are just talking about the materials. हम materials की बात कर रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे कि इसको बनाया किसने. Obviously ये सब चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, but materials जो इंसान ने लिया है वो natural है या man-made, this is what we have to find out, right? So cotton shirt में हमारे पास cotton is a natural material. So I'm writing green because I'm not having the color right now, but green mean you have to circle it with the green pencil. It's a natural material. Plastic car, it's a man-made, so we are going to write R. Up R stand for red. आपने green color करना है. मेरे पास color नहीं है, that's why I'm using the words, ठीक है. Leather bag, we get leather bag from the, हमें leather bag कहाँ से मिलता है? We get leather bag from the animal skin. So animal skin is a natural thing, so leather bag is also a natural. Green. Okay, now you have to see gold necklace. And I told you earlier, gold is a metal, so gold necklace will be a natural material. So what you are going to write, आपने कैसे सर्कल करना है इसको? You will write it with the green. You have to write green. All right, class 2, just have a look. I have just written the words. आपने इनको सर्कल करना है ग्रीन और रेड पेंसिल के साथ. पेपर वी गेट फ्रॉम वुड, सो इट्स अ नेचुरल मटेरियल. लेड पेंसिल, जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं ना काम करने के लिए, वो पेंसिल भी वुड से बनी होती है. एंड वी नो वुड इज़ अ नेचुरल मटेरियल, सो पेंसिल्स आर ऑल्सो द नेचुरल मटेरियल. तो आपने इसको ग्रीन से सर्कल करना है. देन वी हैव अ क्ले पॉट, इट इज़ मेड ऑफ क्ले, तो वी विल से इट्स अ नेचुरल मटेरियल. देन वी हैव अ रबर डक, एंड यू नो रबर इज़ अ मैन मेड मटेरियल, सो वी आर राइटिंग वी आर सर्कलिंग इट विद द red color because it's man-made. Then we have a plastic bottle, it's also a man-made material. Then we have last object, that is a plastic comb, जिसको हम हेयर ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं. It is also a made of plastic, and we know that plastic is a man-made material, so we have to circle it with the red. So this was about the 2 pages that you have just done. Next, what we are going to do, we have another workbook page that is related to the topic forces. Okay, what we are going to do in this page, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं so that it will be very easy for you to do the work. What we have to do,
हमने फोर्सेस के चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट सीखे थे, पुश और पुल के बारे में. व्हाट आई टोल्ड यू, इफ द थिंग्स और द ऑब्जेक्ट्स while applying the force are coming towards you, अगर फोर्स अप्लाई करने से चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी तरफ खिंचा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसको पुल कर रहे हैं. और अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने से आपसे दूर जा रहा है इसका मतलब है वी आर पुशिंग दैट ऑब्जेक्ट. और इसकी सबसे कॉमन और इजी एग्जांपल डोर की है. जब आप डोर को ओपन करते हैं इट कम्स टूवर्ड्स यू, तो इसका मतलब आप उसको पुल कर रहे हैं. और जब आप उसको क्लोज करते हैं इट गोज़ अवे फ्रॉम यू, इट मीन यू आर पुशिंग दैट डोर. ओके, सो कीपिंग दैट कॉन्सेप्ट इन योर माइंड यू हैव टू डू दिस वर्कबुक पेज. इसमें हमारे पास क्या है, हाउ विल यू डू इट. आपके पास कुछ सिचुएशंस हैं. व्हाट आर द सिचुएशंस, आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू. Look at each situation below. Let's see if you can tell what force you use doing these simple things. Remember pull and push force, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा दिया. ठीक है. नंबर 1 सिचुएशन क्या है, you need to take a bottle of the water out of the fridge. It is in one of the rack in the door. What force you will use. अब यहाँ पे हमारे फ्रिज में, आपके फ्रिज में रैक्स बने होते हैं, इसके अंदर चीज़ें रखी होती हैं. आपने इस बॉटल को बाहर उठाना है, क्या फोर्स आप यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ अ पुल फोर्स. बिकॉज अगर हम पुश करेंगे तो वो बॉटल अंदर चली जाएगी. हमने इस बॉटल को उठाना है, तो वाइल यू आर पिकिंग दैट बॉटल अप तो यू आर अप्लाइंग अ पुल फोर्स. सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन दिस ब्लैंक, you will write pull. Okay, so what next we have in the situation, you want to call someone on the mobile phone. What force you will use. आप किसी को मोबाइल फ़ोन पर बात करना चाह रहे हैं तो आप क्या फोर्स यूज़ कर रहे हैं. तो while we are talking we are pushing the words outside from our mouth. Okay, or while for example if you want to type a button if you want to press a number on the mobile phone you have to use a push force. तो दोनों situations में while typing the number or while talking you are using the pushing force, so you have to write a push force here. Last but not the least, we have a situation in which you are sitting on a dining table and you are eating your favorite meal, but the glass of water is placed on a little distance. What you have to do, you want to take that glass of water. Which force you will apply? आपके पास यहाँ पर पानी का ग्लास टेबल पे थोड़ा डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है और आप उसको अपनी तरफ लेके आना चाह रहे हैं, तो यू विल पुल दैट ग्लास टूवर्ड्स यू. सो वी आर गोइंग टू राइट पुल हेयर. राइट नाउ वी हैव टू डू पेज नंबर 23. व्हाट कैन फोर्स डू. फोर्सेस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, व्हाट फोर्सेस कैन एक्चुअली डू. देयर वी हैव सम मल्टीपल चॉइसेस एंड देन वी हैव अ puzzle box. So what are the statement, let us read it. Number A है choose the correct word to complete the sentence. आपने sentence को complete करने के लिए correct word select करना है. What are the words? Move, force, make things dash. Move, jump, walk, speak. Force चीज़ों के साथ क्या करती है, it let them walk, it let them speak, it let them jump और move. Very good, it let them move. So you are going to write move here as well. इसके बाद हमारे पास है a push or pull force can make an object change its company, direction, color, name. Direction, very good. डायरेक्शन चेंज होती है इससे. ठीक है. नंबर 3 है वी कैन यूज़ द फोर्स ऑफ द विंड टू. हवा की जो फोर्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, फॉर कुकिंग फूड, नो. फॉर पुश अ कार, मे बी. मेक इलेक्ट्रिसिटी, येस. टीयर पेपर, नो. पुश अ कार, कार को पुश करने के लिए भी हवा यूज़ हो सकती है अगर हाई प्रेशर में होगी, तो ये बहुत ज़्यादा कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं है, तो दिस इज़ द राइट वन, मेक इलेक्ट्रिसिटी. हम हवा से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं बिकॉज़ जो एयर है वो
विंड मिल्स को रन करने में हेल्प आउट करती है, और विंड मिल्स के ऊपर जो फ़ैन लगे होते हैं वो मूव करते हैं, पावर आती है उसमें, और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह नीचे वो काम करना शुरू करता है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं. सो इट हेल्प्स टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 4 है What happen when you use force on a play-doh. जो आपके पास प्ले डो होती है खेलने के लिए, क्ले, जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं उसके साथ क्या होता है? इट स्टार्ट मेल्टिंग? नो, इट स्ट्राइक बैक. क्या आप उसको पुश करते हैं तो वो आपको पुश बैक करती है? नेवर, नथिंग, कुछ भी नहीं होता उसके साथ. इट चेंजेस शेप, उसकी शेप चेंज हो जाती है. येस, दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन कि उसकी शेप चेंज हो जाती है. देन वी हैव अ क्रॉस पजल, जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, और आपको पता है अक्रॉस का मीनिंग होता है वी हैव टू गो ऑन दिस साइड, एंड डाउन का मीनिंग होता है वी हैव टू गो ऑन दिस साइड. तो हमारे पास अक्रॉस में 3 वर्ड्स हैं, 3 and 4. हम इसको स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इसमें स्पुट राइट करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी कि आइदर वी आर डूइंग इट राइट और नॉट. ठीक है. अ फुटबॉल चेंजेस इट्स डैश व्हेन इट इज़ हिट. एक फुटबॉल अपनी डैश चेंज कर लेता है जब उसको हिट करता है. क्या चेंज करता है? नंबर 3 में हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं, एंड आई थिंक फुटबॉल चेंजेस डायरेक्शन. लेट अस सी कि यहाँ पे डायरेक्शन के स्पेलिंग कंप्लीट होते हैं या नहीं. येस, डायरेक्शन इज़ द राइट आंसर. ओके, यू ऑल्सो हैव टू राइट द वर्ड इन द ब्लैंक, डायरेक्शन. देन हमारे पास नंबर 4 है दिस हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट. कोई ऐसी चीज़ है इसके अंदर बहुत पावर होती है अगर हम उसको हाइट से नीचे थ्रो करें तो. दैट इज़ नंबर 4 है ये, एंड इट इज़ टूवर्ड्स अक्रॉस. वाटर. वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. इसको हाइट से थ्रो करें नीचे तो इट हैव द एनर्जी जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. अब हमने अक्रॉस के दोनों सॉल्व कर लिए. नाउ वी हैव टू लुक टूवर्ड्स द डाउन पजल. नो डैश कैन बी डन विदाउट यूजिंग सम काइंड ऑफ फोर्स. कोई चीज़ नहीं हो सकती अगर हम फोर्स ना लगाएं. वट कैन नॉट बी डन? नो वर्क, WRK, वर्क कैन बी डन इफ़ यू डोंट अप्लाई फोर्स. देन वी हैव नंबर 2 डैश इज़ नीडेड टू ब्रेक समथिंग. किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें डैश चाहिए होता है. फोर्स इज़ नीडेड टू मेक समथिंग. नंबर 4 kites fly because of force of the air. फोर्स ऑफ द एयर या फिर विंड, VIND, विंड. नो वर्क, फोर्स, wind. So this was all about our today's work that we were supposed to do on the notebook. Yes, we are done. So we are done with the complete chapter of chapter number 8 materials, and with the chapter number 9 forces. Chapter number 9 forces का workbook work हो गया, but we have to do 2 question answers on the notebook that you will get to know in the next video. For today, this was all about the work that you are supposed to do. What